We have the guest with us who want to talk to you, who want to say something about your education, about yourself. So, I request Saloni ma'am to please introduce our guest. All the students kindly sit down. Standard 9 and 10, sit down fast. A very good morning to everyone. Today we have with us SG Jagannath Yatradar. I request our guest and management to please come forward. Today we have with us SG Jagannath Yatradar ji, taken admission in the year 1993 in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Bhusawal in Jalgaon district of Maharashtra. They are the first ranker in 10th standard in JNV Bhusawal. Also secured second rank in 12th standard science stream in the year 2000 in Nashik Division Board. They have completed their BTech in Mechanical Engineering from VJTI College, Mumbai in the year 2004. They have also done 8 years of lecturership in 3 engineering colleges in Mumbai and Pune University. From the last 12 years, they are full-time devotees in ISKCON Mumbai, which is International Society for Krishna Consciousness, and they are spreading the spiritual knowledge and guiding the students of schools and colleges in life values, skills all over the country. Till now, 90 JNVs of 8 states of 3 NVS regions, which are Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka and Kerala, and 3 union territories visited in the last 1 year. Also, 1,000 plus schools and colleges visit for the life values and skill programs in last 10 years. Today we have them in our school. They will guide the students and also they will implement the values. So I request Dr. Sadani sir to felicitate our guests. Thank you, sir. So I thank our dear Sadani sir, teachers, and all of you for giving me this opportunity to share life values and life science. Wish you all good morning. Do you feel happy to see me? Do you feel happy to see me here? I feel so happy to see you because I remember my school days sitting like you and paying attention to teachers and trying to learn some good thing in life. So school life is the most important part of life. आप समझते हैं? हिंदी बोलूँ? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अपनी देश की भाषा। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं मैथ साइंस, लेकिन जीवन की बात जो है अपनी भाषा में ज़्यादा दिल तक पहुंचती हैं, तो अपनी भाषा में बोलता हूँ। चलेगा हिंदी? देश भाषा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि जीवन सबसे महान है। दुनिया में जो कुछ भी है सबसे ज़्यादा कीमती, अनमोल, मूल्यवान क्या है बच्चों? अपना जीवन। ये जीवन बहुत ही अनमोल है। केवल जीवन नहीं, जीवन का एक एक दिन,
एक एक क्षण ये अनमोल है। चाणक्य पंडित जो एक बड़े महान नीतिज्ञ हैं, उन्होंने लिखा है कि मनुष्य जीवन इतना कीमती है, इतना कीमती है कि इस जीवन का एक क्षण भी कोटि कोटि सुवर्ण मुद्रा से भी खरीद नहीं सकते। मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स कैनॉट बाय अ मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इतना मूल्य क्यों कहा गया है मनुष्य जीवन का, हमें सोचना चाहिए। इसका मूल्य इसके लिए है कि मनुष्य जीवन में जो बुद्धि मिलती है उससे हम आत्म अनुभव ले सकते हैं, आत्मबोध ले सकते हैं, जीवन का उद्देश्य को पा सकते हैं। देखिए, जीवन तो सबका है, पशु है, पंछी हैं, कीड़े हैं, वनस्पति है। जीवन तो 84 लाख प्रकार का है। अपने वैदिक साइंस में ये बात आती है पद्म पुराण में कि 9 लाख जातियाँ पानी में होती है, 10 लाख प्रकार के पंछी होते हैं, 11 लाख प्रकार के कीड़े और जो रेप्टाइल्स घिसटने वाले वो होते हैं, 20 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ पेड़ पौधे होते हैं, 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं, जंगली पशु, पालतू पशु 30 लाख, और 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। ये जीवन केवल पृथ्वी पे नहीं है, अपने शास्त्रों में कहा गया है जीवन ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। मुझसे ना बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर इन द स्पेस। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक तारे पर, प्रत्येक ग्रह में जीवन है। यदि वहाँ जीवन नहीं होगा तो उसका उपयोग क्या है? केवल शो के लिए कि बच्चे स्कूल में बोले पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसके लिए नहीं हो केवल भगवान ने बनाया हुआ। वहाँ पे जीवन की व्यवस्था है। जैसे बोलते हैं हम स्वर्गलोक होता है, ब्रह्मलोक होता है, इंद्रलोक होता है, देवी लोक ना, जो दुर्गा देवी है उनका लोक है, कैलाश धाम है शिव जी का, और भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम भी होता है। कृष्ण भगवान का वृंदावन धाम भी है, गोलोक वृंदावन। तो कहने के लिए उद्देश्य ये है कि जीवन सर्वत्र है ब्रह्मांड में। आप देखिए, कभी जमीन खोदिए, जमीन जब खोदते कभी तो उसमें भी जीव निकलते हैं। कभी देखा है आपने? कभी माटी है ना, जमीन खोदते हैं तो उसमें कुछ जीव निकलते हैं ना। मिट्टी में जीव है, हवा में जीव है, हवा में जीव तो है ना, जो उड़ते हैं। कौन उड़ता है? हाँ, पंछी उड़ते हैं। और कौन उड़ते हैं? मच्छर उड़ते हैं। बहुत जीव है। कीड़े, कुछ कीड़े होते हैं वो भी उड़ते हैं। पानी में जीव होता है, जीवन। पानी में कौन होते हैं? हाँ, मछलियाँ होती है, और कछुआ होता है, कछुआ पानी में। और कौन कौन होते हैं? हाँ, मगरमच्छ होता है, सांप होते हैं, कभी कभी फ्रॉक्स भी होते हैं पानी में। तो पानी में जीवन है, हवा में जीवन है, मिट्टी में जीवन है। मतलब क्या है? जीवन सब जगह है। हिमालय में, वहाँ पे भी जीवन है। वहाँ का जीवन अलग प्रकार का होगा, वहाँ का जो शरीर होगा जीवों का वो अलग प्रकार का होगा। आपका स्कूल का नाम जो है नवजीवन, मुझे बहुत अच्छा लगा कल मैं जब सुना कि मुझे नवजीवन स्कूल में जाना है बच्चों के लिए, तो अच्छा लगा कि नवजीवन, यहाँ जीवन की बात अवश्य बोलनी चाहिए। यहाँ जीवन की शिक्षा अवश्य दी जाती होगी, तभी तो नाम सोच समझ के नाम दिया है नवजीवन। तो विद्या से, ज्ञान से हमें नवजीवन मिलता है और बोध होता है कि जीवन को अपना महान कैसे बना सकते हैं। और विद्या की व्याख्या की गई है, सा विद्या या विमुक्तये। क्या कहा गया है विद्या के विषय में? सा विद्या, उसे विद्या कहेंगे जिससे मुक्ति मिलती है, या विमुक्तये। कौन सी मुक्ति? चिंता मुक्ति, भय मुक्ति, दुख मुक्ति। मुक्ति के 3 प्रकार। जो भविष्य की चिंता होती है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, चिंता से मुक्ति। जब दुख होता है, कभी भूतकाल का दुख होता है, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, कभी दुख होता है, मुझे इतने अंक आने चाहिए थे, उतने अंक नहीं आए, मुझे मेडल मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला।
दुख होता है। किस बात का? भूतकाल का। भविष्य की चिंता होती है, मिलेगा नहीं मिलेगा। और वर्तमान में भय होता है। अब जो गाड़ी चलाते हैं, कभी रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा भय होता है कोई ठोक ना दे हमको। तो वर्तमान काल में क्या होता है? भय होता है। भूतकाल का क्या होता है? दुख होता है। और भविष्य का क्या होता है? चिंता होता है। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल में जो अपना जीवन है वहाँ मुक्ति मिल जाती है। भूतकाल के दुखों से मुक्ति, भविष्य की चिंता से मुक्ति और वर्तमान के भयों से मुक्ति या मोहों से मुक्ति। ये कैसे संभव है? विद्या से। तो कौन सी विद्या? जीवन विद्या, जीवन का विज्ञान। तो हम जब बीटेक पढ़ाई किए मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेज में, VJTI कॉलेज में, तो वहाँ हमें गीता का ज्ञान सुनने में आया। हमारे हॉस्टल में, कॉलेज के हॉस्टल में वीकली 1 घंटे का गीता क्लास होता था, भगवत गीता। तो वहाँ हमने समझा कि जीवन भगवान की देन है, दुनिया भगवान ने बनाई है। और भगवत गीता में, अपने वेदों में, अपने शास्त्रों में दुनिया कैसे बनी है, कब बनी है, क्यों बनी है, कौन बनाया है, सब कुछ विस्तार से दिया गया है। क्योंकि भगवान ने दिया है। वेद, उपनिषद या सबका सार भगवत गीता, नाम ही जो है भगवत गीता। मूल शब्द गीता नहीं है, मूल शब्द गीत है। भगवत गीत, भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश इतना सुनने के लिए मधुर होता है, गीत के समान। इसलिए नाम क्या हुआ है? भगवत गीत। बोलते बोलते गीत का गीता हो गया है। तो मूल शब्द गीत है। तो हमने पाया कि जीवन को यदि महान बनाना है तो जीवन जिसने दिया है उसको समझना पड़ेगा। जो हम बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सुना है कभी? अब गाते भी होंगे, कभी गाए आप? नहीं? तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। तो भगवान के लिए कहा जाए, संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा। तुम, हम सभी जीवों के माता पिता। हाँ, अपने शरीर के माता पिता कहाँ पे हैं? अपने शरीर के माता पिता कहाँ पे हैं? अभी कहाँ पे आपके माता पिता? घर पे हैं। तो जो बोलते हैं सबके परम पिता भगवान हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? हम जो आत्माएं हैं, जीव है, एक शरीर है जो बदलता रहता है समय के साथ। आप कभी ऐसे होंगे LKG UKG में थे ना कभी? कि नहीं थे ऐसे? या पहले से ऐसे ही है? बड़े बड़े छोटे थे ना आप कभी? हाँ, और जो बड़े हैं अभी बाद में क्या बन जाएंगे? बूढ़े बन जाएंगे। तो शरीर बदलता है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती है, मन बदलता है हमेशा। बुद्धि भी बदलती रहती, कम ज़्यादा होती है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती। वो कौन है? हम नहीं बदलते। हम मतलब क्या है? जीव, जो भगवान का अंश है। अंतिम बात बोलता हूँ 2 मिनट में। हम भगवान के अंश है, हम भगवान के बच्चे हैं। तो बड़े महान हैं, क्योंकि भगवान अपने पिता महान है। हमें मनुष्य जीवन में ये समझ में आ सकता है। पशु पंछी कीड़े पेड़ पौधे जीवन तो जीते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं, अच्छा सोते हैं, अच्छा शरीर का सुख लेते हैं, अपनी बचाव रक्षा करते हैं। सभी जीव, उनको बंदूक की आवश्यकता नहीं खुद को बचाने के लिए। भगवान ने उनको दिया है। क्या दिया है? कभी नाखून दिए हैं, कभी दांत दिए हैं। देखा है ना? कुत्ते अपना बचाव कैसे करते? कुत्ते दांतों से, नाखून से ना, दांतों। उनको बंदूक लगती है। देखो, तो ये जो है आहार, निद्रा, सुरक्षा, इसकी व्यवस्था भगवान ने सबके लिए की है। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य ही केवल भगवान को समझ सकते हैं या आत्मा को समझ सकते हैं। पशु क्या समझते हैं? कि वो पशु है। पंछी समझते वो पंछी है। लेकिन हम जो है समझ सकते हैं, हमें बॉडी नहीं है, हम शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो कैसा है? अविनाशी है, नित्य है। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है
जिसको ये पता लग जाए कि हम भगवान के अंश है, जैसे हनुमान जी है, अनेक जो भगवान के सेवक है, गरुड़ है, प्रहलाद है, भीष्मदेव है, पांडव, सभी अनेक, लक्ष्मी जी हैं भगवान के सेवक। तो हम सबका जो, हम देखो हमेशा जीना चाहते हैं, कोई बूढ़ा बनना चाहता है, कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता, किसी को बीमारी अच्छी लगती है नहीं, किसी को मृत्यु नहीं चाहिए, सबको जीने की इच्छा है। क्यों? थोड़ा सोचिए। इसके लिए कि हम एक शरीर नहीं है जो बूढ़ा बनता है, जो बीमार होता है और जो नाश पाता है मृत्यु के समय। हम हमेशा जीने वाले भगवान के अंश है, जीवात्मा है, इसलिए हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो भगवत गीता में ये सब ज्ञान जो है भगवान खुद दिए हैं, तो हमें जीवन में कम से कम एक बार भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि वेद पढ़ना इतना आसान नहीं है, समझना आसान नहीं है, बहुत बड़ा वेद है। आजकल वो उपलब्ध भी नहीं है, कुछ जो भाग उपलब्ध है वो समझना कठिन है भाषा की वजह से। लेकिन भगवत गीता जो है, भगवान ने जो कुछ समय पहले 5000 साल पहले कही थी युद्ध के समय, वो हम अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। और मैं जो किताब लिखा हूँ, मुझे IAS बनने की इच्छा थी बचपन से, कि स्कूल लाइफ से, कि जिस समाज की सेवा के लिए बड़ा पद चाहिए तो IAS बनेंगे। तो हमने सोचा कि IAS बनेंगे। लेकिन जब कॉलेज के दिनों में थोड़ा ज्ञान हुआ तो समझ में आया कि अपना स्वभाव क्या, अपने गुण क्या है, तो हमने वो विचार छोड़ दिया IAS बनने का, मतलब जो बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो छोड़ दिया विचार, क्योंकि प्रशासन अपना स्वभाव नहीं समझ के। तो हम टीचर बने इस कॉलेज में, और बाद में समाज की सेवा के लिए वो जॉब भी छोड़ के हम पूर्ण समय जीवन का विज्ञान का प्रचार करते हैं। तो हम IAS बने हैं, वो नहीं बने IAS, लेकिन ऐसे IAS बने हैं जो नित्य है। तो हम IAS का लॉन्ग फॉर्म समझते हैं, आई एम सेवक, आई एम सेवक, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। हम भगवान के सेवक है जो नित्य है। तो बच्चों, ये जो किताब है, इन कुछ किताबें अपने स्कूल की लाइब्रेरी के लिए गिफ्ट देने वाला हूँ, और कुछ किताबें जो हैं स्टाफ को भी देने वाला हूँ, ताकि आप अपने समय निकाल के देख सकते हैं। तो इसमें जीवन की फिलॉसफी है और मुझे कुछ अनुभव है जीवन के, समाज के, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं अपने जो सदानंद सर हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर एक सेवा का मौका दिया है। थैंक यू सर। हाँ, तो बच्चों, सर बोल रहे हैं कि मैं आपको इन्विटेशन दूँ। हम लोगों का जन्माष्टमी उत्सव होता है। आपने इस्कॉन मंदिर का नाम सुना है? धुलिया में जो नकानी रोड है, साईं बाबा मंगल कार्यालय, उसके बाजू में इस्कॉन का एक सेंटर है, मंदिर है। वहाँ पर हर साल भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होता है बड़े धूमधाम से। तो उसकी जो डेट्स है, तारीख है 25, 26, 27, 3 दिन का उत्सव मनाएंगे। तो शाम को 5 बजे से 9 बजे तक ये उत्सव होगा। तो कुछ मैं कार्ड्स लेके आया हूँ, यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे कार्ड लगा देंगे सर, तो आप वो देख सकते हैं एड्रेस के लिए या कुछ बाकी चीज़ों के लिए, क्या उसमें क्या क्या होगा। तो बच्चों के लिए भी कुछ वहाँ पे प्रोग्राम्स होती हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, अभिषेक होगा भगवान का, सबके लिए महाप्रसाद होगा। तो आप अपने माता पिता के साथ वहाँ पर आमंत्रित है, ठीक है। डेट्स क्या है? 25, 26, 27। समय क्या है? शाम का 5 से 9। और जगह कौन सी है? नकानी रोड, साईं बाबा मंगल कार्यालय के पास, ठीक है। इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन सेंटर, ठीक है। तो आप उसके लिए आमंत्रित हैं। I request Dr. Sadanand sir to express four doubts. Respected guest, Shri Jagannath Rath Yatra Das Swami Ji, our school committee chairman Dr. Sadanand sir, dear teachers and all my visitors, today we are very fortunate that we have with us such an eminent personality, very knowledgeable guest with us. आज उन्होंने जो जीवन के बारे में हमें बताया है वो हम आपको
प्रॉमिस करते हैं कि हमारे सभी टीचर और स्टूडेंट ये जीवन के मूल्य समझेंगे और जीवन में इसका अनुकरण करेंगे। तो आप यहाँ आए और आपने अपना जो कीमती समय यहाँ दिया, हम आपके आभारी हैं। उनकी तरफ से सभी नजदीक आना। Dear students, without making noise, you have to stand slowly, very slowly. Very good. Very good. Cool and easy. Now we will move to the class with the instructor now. So we have